So first of all, welcome back to my channel Life with Vidushi. It's 3:45 a.m. and today me and my roommate have planned that we will go and see the beauty of Bangla Sahib. So we have planned that we'll see that how it looks before sunrise. So yes, by 4 we will leave and let's see the beauty. सो द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस प्लान वॉज मुझे हमेशा से ही देखना था कि मतलब जब हम बंगला साहिब यूजुअली दोपहर में जाते हैं या शाम में जाते हैं तो हमें तभी इतना पीसफुल लगता है वहाँ पे। तो सुबह जो लोग आते हैं लाइक एकदम मॉर्निंग में, कुछ लोग तो 3:30 पर ही चले जाते हैं या 4 बजे चले जाते हैं। सो मुझे हमेशा से देखना था कि वहाँ इस टाइम पे जाकर कैसा फील होता है, कितना पीसफुल लगता होगा। सो आज हम देखेंगे एंड अभी तो 3:45 AM हो रहा है एंड देन विल रीच देयर बाय आई थिंक 4:15. So we'll explore that and we'll show to you as well. So let's go. Guys, so we are ready and we are all set to go and excited. Yay! पीजी पे ध्यान मत देना गाइस, हम पे दो। So yes guys, we have reached Bangla Sahib and हम कैब से आए हैं इतनी रात में। इतनी रात क्या, मतलब सुबह हो रही है, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। सो यस, अब हम अंदर जाएंगे। सो अभी हम एक और फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए फिर उसके बाद विल गो इनसाइड। I feel if you ever feel lost or overwhelmed, visit a place like this at sunrise. You will realize how small your worries are and how big the universe is. You will realize you don't always need answers, you just need a moment of peace. So, I have been feeling restless lately, like career, life, just everything moving too fast and same day repeating on loop. But this morning reminded me that I am exactly where I need to be. You don't need a weekend trip to escape. Sometimes peace is just one sunrise away. So if you have never visited Bangla Sahib at 4 am or 5 am, do it once, just for yourself. Maybe it can heal you or give you the peace you always wanted. हमारे दर्शन हो गए हैं एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वेरी पीसफुल एंड काम एंड ब्यूटीफुल। यस, बहुत मज़े, मतलब इट वाज इमेंस पीस। गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग बैक। Back at my PG and my experience at Bangla Sahib was very peaceful, very calming, and Bangla Sahib isn't just beautiful, it's sacred. Like the comfort and relaxation it gives you, it's another level. So now I will be telling you a little bit history of it, like ये Bangla Sahib गुरुद्वारा यहाँ पर like क्यों है, क्या relevance है उसका। तो क्योंकि लोग चले तो जाते हैं बट वो ये नहीं देखते कि वाई इज़ इट हियर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लाइक यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली दिस गुरुद्वारा इज़ बिल्ट ऑन दी साइट लाइक वेयर द 8th सिख गुरु, मैं उनका नाम पढ़ के बोलती हूँ, Guru Har Krishan Sahib Ji. He stayed during his visit to Delhi during 1664. So during this time, he selflessly served people who were suffering from smallpox and cholera, and eventually he lost his life to the disease. And this place still carries the energy of seva and selfless service. Like मैंने खुद देखा है कि लोग वहाँ पे कितना selflessly सर्विस करते हैं पूरे टाइम। लाइक जब मैं गई थी अंदर फॉर द लंगर, वहाँ पर भी इतने सारे सेवाधारी होते हैं एंड दे वर्क सेल्फलेसली। लाइक उनको बस ये लगता है कि वो भगवान के घर में काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग. सो इट वॉज very good to see like their devotion, their unity which they have.
So my friend who was there with me in the Gurudwara, he told me something very incredible and I found it shocking as well. क्योंकि he told me that जो गुरुद्वारे में सरोवर होती है वो कुछ सालों में एक बार क्लीन होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क एंड सपोजिटली इट टेक्स 30 to 45 days. तो कम्युनिटी ने यही डिसाइड किया था कि 30 days में हम क्लीन कर देंगे, लाइक थोड़ा थोड़ा क्लीन करके. बट जब ये डिसाइड हुआ एंड इस चीज़ को बोला जाता है कर सेवा, तो जब ये मैसिव कर सेवा ऑर्गेनाइज हुई तब मतलब जगह जगह से इतने सारे सेवाधारी, इतने सारे लोग आए कि जो सरोवर थी वो एक दिन में क्लीन हो गई. लाइक उसके आगे वाला काम तो चलता रहा फॉर 1 week or 2 week, बट जो मेन क्लीनिंग थी ऑफ द सरोवर वो एक ही दिन में हो गई. सो उन्होंने कितना सेल्फलेसली एफर्ट किया होगा, कितना सेल्फलेसली उन्होंने डिवोशन किया होगा. लाइक इतने सारे लोग आए, लाइक यू कुडंट इमेजिन, राइट. एंड आई फाउंड दिस स्टोरी सो सिम्बॉलिक दैट जब हम प्योर इंटेंशन के साथ सर्व करते हैं तो जितना भी ह्यूज बर्डन हो वो बहुत ही लाइट हो जाता है, क्योंकि हमारी इंटेंशन प्योर होती है. सो लास्टली आई रियलाइज्ड दैट इट डजेंट मैटर विच रिलीजन और बिलीफ यू फॉलो. The places of worship, whether it's a temple, church, mosque or a gurudwara, these places holds unexplainable peace, they have calmness and they heal you. आपको पता नहीं चलता, बट जब आप इन प्लेसेस पर जाते हैं तो आप काम डाउन हो जाते हैं. यू गेट होप, यू गेट फेथ. एंड डू यू एवर वंडर्ड लाइक वाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नो वन एंटर्स इनटू दीज प्लेसेस विद एंगर या फिर ईगो के साथ. हम यहाँ आते हैं फेथ के साथ, एक होप के साथ, एक ऐसी विश के साथ कि हम हल्का फील करेंगे. हम इसलिए यहाँ पर आते हैं. So yes guys, that was all about this video. There were so many efforts made for this video. I hope you loved it, and if you really liked it then do subscribe, like and comment, and most importantly share it with your friends so that they also know. And don't forget to leave your recommendations for the next video in the comment box because I do see your comments. So yes guys, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.